नवंबर 21। अच्छा, अक्टूबर नवंबर का पेपर हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मैनी क्वेश्चन फ्रॉम दिस पेपर आर रिपीटेड इन अवर एग्जाम। ठीक है। अच्छा, दिस इज अवर सेम सिलेबस। नाउ ड्रॉ वन लाइन फ्रॉम ईच बाइनरी वैल्यू टू इट्स इक्विवेलेंट वैल्यू ऑन द राइट। अच्छा, 8 bits means 1 byte. Okay. Then 8000 bit. 8000 bit means 8000 divided by bits है ना. So we need to convert into byte. To convert into byte, we need to divide it by 8. So it will be 1000 byte. And 1000 byte means 1 kilobyte. We know we have two different units. One is SI units, like we use in mathematics, in chemistry and physics, and IEC. In SI units, we use 10 power. Base as a 10, right? So we use powers of 10. So 10 power 3 is equals to 1000. And in IEC, we use powers of 2. 2 power 10 is equals to 1024, right? We use 10 power 3, 10 power 6, 10 power 9, 10 power 12, 10 power 15. Here we use 2 power 10, 2 power 20, 2 power 30, 2 power 40, and 2 power 50. अच्छा, 10 power 3 is equals to 1 kilobyte. और if we are using powers of 2, तो ये equal होगा 1024. It will be little bit different from 1000. It is known as KB byte. So you may see here we have this one is KB byte, this one is GB byte, and this one is MB byte, right? So basically these are powers of 2. ठीक है. And we have gigabyte, kilobyte, megabyte. So these are based on powers of 10. ठीक है. तो ये 10 की पावर के ऊपर है और ये 2 की पावर पर है. तो base 2 and this is base 10. Now it says 8000. 8000 को हमने कहा 1000 आ रहा. 1000 is 10 power 3. So it will be equals to 1 kilobyte. 1000 kilobyte will be equals to 1 megabyte. और 8192, 8000, अच्छा 1024 आ गया. तो इट विल बी किलोबाइट की जीबी बाइट. जीबी बाइट, राइट. तो ये हो गया आपका जी. ठीक है. अच्छा, यहाँ पर क्या है 8192 बिट्स है. तो वी नीड टू डिवाइड इट बाय 8 टू कन्वर्ट इनटू बाइट्स. तो इट विल बी 1024 बाइट्स. तो 1024 बाइट जो है वो किसके बराबर है 1 KB बाइट. तो वेयर इज KB बाइट. यस बेटा. नाउ परफॉर्म द बाइनरी एडिशन एंड शो योर वर्किंग, राइट. अच्छा, it says show your working. It means 1 mark for correct answer and 1 mark for the working. ये 2 mark का question. So show, you will show your working. How to show? What will we do? 0 plus 1 will be 1. Carry will be 0. 1 plus 1 will be 0. Carry will be 1. 1 plus 1 2 0 carry 1. 1 plus 1 2 0 carry 1. 1 plus 1 2 carry 1. 1 plus 1 2 plus 1 3 carry 1. ट्रिपल वन. ठीक है. देन स्टेट हाउ एन ओवरफ्लो कैन ऑकर व्हेन एडिंग टू बाइनरी नंबर्स. तो रीजन क्या होगी. हाँ बेटा, दानियाल. ओवरफ्लो कब होता है न्यूमेरिक बोर्ड. हाँ, एक्सीलेंट एक्सीलेंट, एग्जैक्टली. क्या होगा कि इफ द रिजल्ट needs more bits than the supplied one. For example, here we are using 8 bits.
8 बिट्स है हमारे पास यहाँ पर। आप आपके पास अब रिजल्ट आ रहा है 9 बिट में, तो 9th बिट विल बी ओवरफ्लोन, राइट? तो if the result if the result of calculation requires more bit than assigned, more than assigned bits, huh? So more than assigned bits, overflow will occur. Okay, आप चाहो तो एग्जाम्पल भी लिख लो. फॉर एग्जाम्पल इफ बिट पैटर्न कंसिस्ट ऑफ 8 बिट्स एंड रिजल्ट इज इन 9 बिट्स, so there will be an overflow. अच्छा, अब क्या कह रहा है कि कन्वर्ट द हेक्साडेसिमल वैल्यू f0 into denary. तो f and 0. So firstly we convert f and 0 into binary, and then we will convert this binary into denary. अच्छा, it is not mentioned that this is 2's complement or 1's complement, nothing is written, huh? तो we have option कि हम से साइन इंटीजर ले लें या अनसाइन इंटीजर ले लें. Whatever we are using will be acceptable, right? So we write down 1248, 1248. So 1111 0000, and then you convert it to 1248 16 32 64 128. So it will be 240. अच्छा, it is not mentioned that this is signed integer or unsigned integer or 2's complement or. ठीक है बेटा, is it clear? Is there any confusion? हेलो बच्चों, is there any confusion? ठीक है ना? तो you may see that the number it starts with 1 ना, तो 1 से start हो रहा है, तो you may say that this is negative number, but in question it is not mentioned. जब वो कर रहा होता तो फिर हम करके देखते हैं. ठीक है. अच्छा, अब क्या बात हो रही है हमारे पास? नेक्स्ट क्वेश्चन. यस दानियाल, रीड में व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू? राइट, फ्रॉम बीइंग लॉस्ट, बीइंग हैक्ड, राइट, एंड डेटा इंटीग्रिटी इज करेक्टनेस ऑफ द डेटा, एक्यूरेसी ऑफ द डेटा, राइट? तो डेटा, हाँ दे सकते हैं. डेटा सिक्योरिटी रेफर टू, हाँ बेटा, किसको दे डेटा सिक्योरिटी किसको रेफर कर रहा है बेटा? प्रोटेक्शन ऑफ डेटा अगेंस्ट प्रोटेक्शन ऑफ डेटा अगेंस्ट डेटा लॉस और डेटा बीइंग करप्टेड और डेटा बीइंग हैक्ड. ठीक है, अगेंस्ट, हाँ कुछ भी लिख सकते हैं. डेटा लॉस, डेटा लॉस, डेटा लॉस हो गया, डेटा करप्शन, अगेंस्ट डेटा बीइंग लॉस्ट, करप्टेड और हैक्ड, while integrity refers to correctness and accuracy of the data. Correctness, reasonability, of data. ठीक है बेटा, one mark. It says that Xanthi uses both data validation and data verification when entering data on her computer. Describe how data validation helps protect the integrity of data. Give an example. अच्छा, अब आपसे बात कर रहा है डेटा वैलिडेशन की और डेटा वेरिफिकेशन की. व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डेटा वैलिडेशन एंड वेरिफिकेशन? इज
Validation means that it's like the same as the original entry. Okay. Verification says that data is correct or exactly same the data that is being transmitted. Validation means data is reasonable, acceptable. Reasonable, acceptable, complete, right? तो ये आपका validation है. And you may write down an example. हाँ, you may write down an example. What example you can write down over here? तो अगर मैं इसको ओके हाँ बेटा क्या बोल रहा है डिस्क्रिप्शन करना है आपको वैलिडेशन की टू चेक डेटा इज कंप्लीट रीजनेबल एंड वर्केबल ठीक है ना अच्छा फॉर एग्जांपल अच्छा इट इज नॉट नेसेसरी कि डेटा आपका वैलिड हो बट करेक्ट करेक्ट भी हो अच्छा इसके एग्जांपल आपने ले ली लेंथ चेक पैरिटी चेक उसकी वेरिफिकेशन के एग्जांपल है बेटा ठीक है ना लेंथ चेक इन पासवर्ड must be 8 characters long for example ठीक है अच्छा वेरिफिकेशन मीन्स टू इंश्योर दैट डेटा इज करेक्ट मैचेस टू ओरिजिनल ठीक है और इसके एग्जांपल क्या सर उन्होंने क्वेश्चन में बोला है व्हाइल एंटरिंग डेटा, कहाँ तो उसमें क्वेश्चन पैरिटी चेक तो नहीं आएगा ना? इसके हाउ वेरिफिकेटेड गिव एन एग्जांपल कहाँ पर है कहाँ पे लिखा हुआ है एंट्रिंग डेटा हाँ हाँ देखो बेटा इसमें क्या बोला हुआ है कि while data is entered एंटर करते वक्त तो आप वो ले सकते हो क्या कहते हैं आपका डबल एंट्री ले सकते हो या विजुअल चेक हो सॉरी सॉरी ये तो ट्रांसमिटेड की बात होगी क्या होगा डबल एंट्री वो तो सही है ये तो लाइन चेक तो आप उसे करोगे ना पासवर्ड एंटर करोगे डबल एंट्री और विजुअल चेक टू चेक डेटा इज एंटर्ड अच्छा two malware threats are spyware and viruses give two similarities and one difference between spyware and virus both are entered in user's computer without user's knowledge. Both are malicious software. ठीक है बेटा एक तो ये हो गया सेकंड क्या है both are malicious software. malicious का वर्ड तो हर उसमें दिया हुआ है ना malware है ना हाँ ठीक है both are developed with intention to harm users. अच्छा डिफरेंस क्या हो गया स्पाईवेयर just copies monitors key presses and relays to creator file virus से corrupt data
एक मार्क किसके में दिया गया है कि बोथ आर वर्किंग इन बैकग्राउंड। अच्छा, एक मार्क किसके में डिफरेंस दिया हुआ है कि वायरसेस आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग while spyware is not a self replicating। अब आपको क्या करना है, इसकी लॉजिक एक्सप्रेशन लिखो। अब एक्सप्रेशन किस तरह लिखोगे, पहले आप इसको क्या लिख दोगे आप कि ये हो गया ए एंड बी हो गया, तो इसका रिजल्ट जो है वो जॉर हो रहा है किसके साथ, सी के साथ, ठीक है ना। और ये सब क्या हो रहा है, और हो रहे हैं किसके साथ, नॉट सी के साथ। और क्या लिखोगे, x इक्वल्स टू 1, x is 1 if a, अब ब्रैकेट पर लिखेंगे हम, a is 1, a and b, ठीक है। इसको सॉल्व कर देंगे हम किसके साथ, और ये वाला ब्रैकेट, ठीक है। ये क्या हो गया, ए एंड बी, ए एंड बी पहले ही किया हमने, इसको ब्रैकेट में बंद कर दिया, तो इसको हमने जोर कर दिया किसके साथ, सी के साथ, इसको ब्रैकेट में बंद कर दिया, फिर ये वाला ब्रैकेट हमने बनाया, इसके अंदर हमने क्या किया, इसको नॉट कर दिया, और कर दिया, नॉट बी, सॉरी सॉरी बेटा सॉरी, नॉट बी कर, और नॉट, अच्छा इसका टेबल कंप्लीट करना, हाँ ये जल्दी से चेक करना है तो चेक करना है। ये बी हो गया, ये बी नॉट, ये बी, बी इज एंड ऑन ए एंड बी, तो ए एंड बी के ऊपर एंड हो गया, बोथ आर वन देन आउटपुट इज वन, बोथ आर वन देन आउटपुट इज वन, बोथ आर वन देन आउटपुट इज वन, अदरवाइज आउटपुट इज जीरो। देन ई, ई इज जोर गेट ऑन सी और डी के, क्या हो गया बेटा, इजा नहीं होना मेरा बच्चा, इजा आर यू हियर बेटा, Yes, I'm here. अच्छा जोर गेट सी और डी के साथ, ये जोर गेट है डी एंड सी, तो डी एंड सी के साथ जोर गेट है, तो दिस इज डिफरेंट, दिस इज डिफरेंट, दिस इज डिफरेंट, दिस इज डिफरेंट एंड ऑल आर सेम। Then P naught. P naught is not on B. 1 1 0 0 1 1 0 0. Then OR gate on E and B. OR gate says P naught. OR gate says both are 1. Either is 1, output is 1. So 1 1 1 1 1 1. Double 1 0 double 1 double 1 0. हो गया बेटा, आइडेंटिफाई वन लॉजिक गेट नॉट यूज्ड, और आपने जो आइडेंटिफाई वन लॉजिक गेट नॉट यूज्ड इन द गिवन लॉजिक सर्किट। हाँ बेटा, इस लॉजिक सर्किट में कौन सा गेट यूज नहीं हुआ है, नैंड यूज नहीं हुआ, और नॉर भी यूज नहीं हुआ। आप नैंड और नॉर कोई भी बना सकते हो, और इसका सिंबल भी बनाना है आपको, और ट्रूथ टेबल। नैंड गेट में बोथ आर वन देन आउटपुट जीरो, अदरवाइज आउटपुट इज वन। कितने मार्क का क्वेश्चन आया, 3 2 3 and 3 6 and 2 8, 8 मार्क का क्वेश्चन आया है 9618 में। गुड, चलो क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, कोई फिक्स नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 निकालें, क्या कह रहा है। अच्छा भाई, एथिकल बॉडी आपसे क्या कह रहा है कि फ्रांसिस स्टार्टिंग हिज फर्स्ट जॉब एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर फॉर अ मल्टीनेशनल कंपनी। Francis had been advised to join a professional ethical body. Describe the benefits of to Francis of joining a professional ethical body. क्या समझ में आ रहा है,
इन वर्डिंग से क्या समझ आ रहा है? हाँ भाई, अब अगर आप एक प्रोफेशनल एथिकल बॉडी को ज्वाइन कर लोगे तो क्या बेनिफिट होगा, 3 मार्क के लिए आपको डिस्क्राइब करना है। हाँ भाई, यस राहिम, क्या बेनिफिट होगा? अब ये क्वेश्चन आप थोड़ा सा अपनी कॉमन सेंस को यूज करते इसका आंसर लिख सकते हो। हाँ भाई दानियाल, व्हाट विल बी द बेनिफिट? एक एथिकल बॉडी को ज्वाइन करने का क्या बेनिफिट होगा, कॉमन सेंस यूज करते बताओ। क्या बोले? यस इजा। Sir, in the ethical body, uh, the actions are नहीं, आपकी एथिकल pre-written, बॉडी है जो so कोड ऑफ he'll एथिक्स know को। what's ethical and what's not. ठीक है, एंड 3 पॉइंट चाहिए, 3 पॉइंट। And हाँ बेटा, 3 पॉइंट चाहिए यहाँ पर। आपको 3 पॉइंट में डिस्क्राइब करना है। एक तो क्या होगा कि अगर आप एथिकल बॉडी को आप ज्वाइन करोगे तो उससे आपको एडवांटेज क्या होगा कि you will develop an environment in your company where code of ethics are followed। हाँ, एथिकल बॉडी आपको क्या करेगी, कोड ऑफ एथिक्स के अंदर एथिकल जो मॉरल वैल्यूज है उसके अंदर आपको सपोर्ट प्रोवाइड करेगी कि व्हाट थिंग्स आर, आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगी कि क्या चीज़ें ऐसी हैं जो कि एथिकल हैं, कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि अनएथिकल हैं। ठीक है, फिर आप अपनी कंपनी के अंदर क्या होगा, एक एथिकल एनवायरनमेंट आप प्रोड्यूस करोगे। ठीक है ना। एथिकल एनवायरनमेंट क्या होगा कि आप अपने क्लाइंट, अपने एम्प्लॉयर और अपने जो प्रोडक्ट है, हाँ, इसकी इंटरेस्ट के अगेंस्ट काम नहीं करोगे। तो आपकी क्लाइंट को ये मेक श्योर होगा कि आप क्या कर रहे हो, किसी स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहे हो। ठीक है ना, यू विल नेवर एक्ट अगेंस्ट हिज इंटरेस्ट। हाँ, तो ये, हाँ, वर्डिंग चेंज करके आपको अपने कॉमन सेंस को यूज करते हुए इसका आपको आंसर लिखना है। ठीक है ना। तो क्या लिख सकते हैं कि एथिकल बॉडी will guide to maintain to follow code of ethics। हाँ? Being a member of ethical body will make sure that employee Francis will never act against interest of client and and employer। ठीक है, ये हो गया आपके कि आप जो है वो क्लाइंट के इंटरेस्ट के अगेंस्ट काम नहीं करोगे। आप एम्प्लॉयर को, हाँ, फ्रांसिस will maintain highest possible standard of the product। He will be supportive to his colleagues।
अच्छा, अब क्या कह रहा है अभी? Francis is shown the software he will be working on. He is unfamiliar with the integrated development environment he is required to use. फ्रांसिस जो है किस सॉफ्टवेयर पे काम कर रहा है, अब उसे कंपनी के अंदर से जब ज्वाइन करा है तो उसको उन्होंने बता दिया कि भाई इस कंपनी के अंदर आपको इस लैंग्वेज के ऊपर काम करना है। अच्छा, फ्रांसिस जो है वो उस लैंग्वेज के इंटीग्रेटेड, तो describe the ways in which Francis can act ethically in this situation. हाँ, पहले वो क्या करेगा, इन्फॉर्म करेगा अपने एम्प्लॉयर को कि he is not familiar with the language and he will give them surety that he will learn it. हाँ हाँ, यस यस, दानियाल, यस बेटा, इजा, इजा बच्चा, इजा Yes, बेटा। sir. अब वो क्या कह रहा है कि फ्रांसिस is shown the software he will working on। फ्रांसिस अभी ज्वाइन कर रहा है कंपनियां। he is unfamiliar with the integrated development environment he is required to use, यानी जो लैंग्वेज उसको दी है उस लैंग्वेज से वो फेमिलियर नहीं है। अब फ्रांसिस को हाउ ही शुड एक्ट एथिकली इन दिस सिचुएशन। So he should ask his employer or coworker for help. वन, सेकेंडली he should inform his employer that he is not familiar with the language and he need to give him surety that he will learn the this language, right? So lifelong learning is also a part of ethics। हाँ, अपने एम्प्लॉयर के इंटरेस्ट के में बेटर होगा कि आप उसको इन्फॉर्म करोगे। सेकेंडली यू विल आस्क सपोर्ट फ्रॉम योर कोलीग्स। एग्जैक्टली, ठीक है बेटा, तो अब क्या करोगे? फ्रांसिस should inform the employer that he is not familiar with the language and should assure them that he will learn it. He may ask support from management and colleagues in learning new ideas। यस बेटा, दानियार, डन। अच्छा जी, अब आपसे क्या कह रहा है कि अ टिपिकल आईडी प्रोवाइडिंग डीबगिंग टूल्स। डीबगिंग टूल्स हमने देखा था कि एरर्स को फाइंड आउट करना, उनको रिमूव करना, ये आपको एक आईडी के अंदर मिलता है। इसके अलावा आईडी प्रोवाइड यू टेक्स्ट एडिटर, आईडी प्रोवाइड यू प्री टी टाइपिंग, फैसिलिटी ऑफ प्री टाइपिंग, ऑटो इंडेंटेशन, ऑटो कंप्लीशन। दीज आर द फीचर्स प्रोवाइडेड बाय आईडी। ठीक है, तो पहला क्या हो सकता है? ऑटो करेक्ट तो नहीं होता है, ऑटो करेक्ट देखना पड़ेगा। अच्छा, हाँ बेटा, दानियल बोलो, क्या क्या फीचर हो सकते हैं? प्रीटी टाइपिंग, और बोले प्रीटी टाइपिंग क्या होता है? प्रीटी टाइपिंग क्या होता है बेटा? जब हम कोड लिख रहे होते हैं तो क्या होता है कि वो कमांड वर्ड का कलर चेंज कर देता है।
ठीक है, और जो वेरिएबल्स उनके कलर चेंज कर देता है, ऑटो इंडेंटेशन। ठीक है, और बोला था किसी ने? हाँ, बोले बेटा, और बोले बच्चों। You said auto completion too, I think. ऑटो कंप्लीशन और ऑटो करेक्शन और दिस टाइप ऑफ थिंग। अच्छा, सम टाइम क्या होता है कि आप अपने कोड को कोलैप्स, साइड में बटन बने होते हैं प्लस और माइनस के, प्लस करते हैं तो वो क्या हो जाता है आपका, एक्सपेंड हो जाता है, माइनस करते हैं तो कोड कोलैप्स हो जाता है। अच्छा बेटा, Francis is a part of a team writing a program. He finds an error in part of the program that has already been tested. He decides not to tell anyone because he is worried about the consequences. Explain why his why Francis the reason why Francis acted unethically. ठीक है, तो दिस इज अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द क्लाइंट, दिस इज आल्सो अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द एम्प्लॉय। एक अब क्या होगा, एक क्लाइंट जो है वो दोबारा उससे काम नहीं करवाएगा या उसकी गुडविल इफेक्टेड होगी। और ठीक है, अच्छा, मार्केटिंग स्कीम के अंदर उन्होंने क्या लिखा है कि ही डिड नॉट एक्ट इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द प्रोडक्ट बिकॉज द प्रोडक्ट माइट फॉल बिकॉज ही डिड नॉट रिपोर्ट द एरर। फिर कह रहा है कि he did not act in best interest of the client, फिर he did not act in the best interest of the profession, he did not act in the best interest of the company। यानी ये क्या है? हेलो जमरान, हेलो जमरान, we are solving our own code 9618 from October November 2021। अच्छा बेटा, तो यू नीड टू राइट डाउन द रीजन। हाँ, तो क्या होगा, इट इज अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ, इट इज अगेंस्ट interest of client and employer. If an error is not identified and corrected, product will not be at highest possible standard। हाँ, ये एक इशू आ जाएगा। और क्या होगा बेटा? हाँ, दोनों के लिए ना, क्लाइंट एंड एम्प्लॉयर। ठीक है, अच्छा भाई, अब क्या बात हो रही है कि फ्रांसिस टीम यूज a language translator complete the description of the language translators by writing and the missing words। अच्छा, लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स की एक वीडियो मैंने आपको शेयर की है, उसको देख लेना, और ग्रुप के ऊपर मैंने शेयर की है लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स की एक वीडियो, उसको देख लेना। हैव आई शेयर्ड? है ना, लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स की वीडियो है ना, इसको देख लेना। अच्छा, ये क्या कह रहा है, कंप्लीट द डिस्क्रिप्शन ऑफ लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स बाय राइटिंग द मिसिंग वर्ड्स। अच्छा, डैश आर यूजुअली यूज्ड व्हेन अ हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम इज कंप्लीट। अच्छा, they translate all the code at the same time and then run the program। they produce dash files that can be run without source code। ठीक है, तो ये एक ही की बात हो रही है, एक ही को रेफर कर रहा है ना, ये सारी चीजें जो आपको एक ही को रेफर कर रहे हैं कि दे और, ठीक है, तो पहली बात तो ये। फिर उसके बाद क्या, एंड देन रन दैट line of code, they are most usable while developing the program। अच्छा भाई, ये तो हो गया, ये खत्म हो गया, अब दूसरा वाला शुरू हो गया।
dash translate one line of a high level language program at a time and then run that line of code. They are most useful while developing the program because errors can be corrected and then the program continues from that line. Assemblers are used to translate assembly language. अब तीनों लैंग्वेज ट्रांसलेटर को उन्होंने डिस्क्राइब कर दिया है. पहला वाला क्या होगा? कंपाइलर. फर्स्ट वन विल बी कंपाइलर बिकॉज कंपाइलर क्या कर रहा होता है? दे ट्रांसलेट ऑल द कोड एट द सेम टाइम. ठीक है. इंटरप्रेटर एक लाइन को ट्रांसलेट करता है. दे प्रोड्यूस एग्जीक्यूटेबल फाइल. जब आपके पास एग्जीक्यूटेबल फाइल आ जाती है तो यू डोंट नीड टू ट्रांसलेट इट अगेन एंड अगेन, सो प्रोग्राम कैन बी रन विदाउट द सोर्स कोड. अच्छा, फिर उसके बाद क्या आ गया आपका? इंटरप्रेटर. इंटरप्रेट लैंग्वेज एंड ट्रांसलेटर्स का टॉपिक आता है सिस्टम सॉफ्टवेयर. Interpreter translate one line of a high-level language program at a time and then run that line of code. They are most useful while developing the program because errors can be corrected and then the program continues from the line. Assemblers are used to translate assembly language code into machine machine code. Assembly language खुद एक low level language. मशीन लैंग्वेज ऑब्जेक्ट को. ठीक है. चल. अच्छा, अब आपको क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 5. जी सर, इधर देखिए. असेंबली लैंग्वेज नहीं, असेंबली लैंग्वेज तो दिया हुआ है ना बेटा. अच्छा, जेवियर ओन्स many shops that sells cars. He employs several managers who are each in charge of one or more shops. He uses the relation database cars to store the data about the business. Part of the database is shown. Shop, shop ID. अच्छा, शॉप के अंदर क्या है? शॉप आईडी है, मैनेजर आईडी है, एड्रेस है, टाउन है, टेलीफोन नंबर है. मैनेजर के अंदर मैनेजर आईडी है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और डेट ऑफ बर्थ और वेज है. और कार के अंदर कार रजिस्ट्रेशन नंबर है, मेक है, मॉडल है, नंबर ऑफ माइल्स है और शॉप आईडी है. अब आपसे पूछता है कि जो मैनेजर का टेबल है, इस मैनेजर के टेबल के अंदर जो मैनेजर आईडी लिखी हुई है, ये क्या चीज है? प्राइमरी की है. आपको टिक लगाना, ये कह रहा है टिक लगाना. ठीक है. अच्छा, शॉप के टेबल में जो मैनेजर आईडी है ये फॉरेन की होगी. अच्छा, कार के टेबल में जो कार रजिस्ट्रेशन नंबर दिया हुआ प्राइमरी की होगी. और कार के टेबल में ही शॉप आईडी दी हुई है तो ये फॉरेन की. राइट. राइट बेटा. यस. बाथरूम जा रहा हूँ, मोबाइल याद कर जाओ. हाँ प्लीज. करो बेटा. दानियाल देखो स्विच है क्या? नहीं है तो यहाँ से बंद करो. नहीं, नहीं हुआ, नहीं हुआ. सही. राइट. कोई और लाइट खोलना है तो खोल लो. हाँ बच्चों, डिस्क्राइब द वेज इन विच एक्सेस राइट्स कैन बी यूज टू प्रोटेक्ट द डेटा इन जेवियस डेटाबेस फ्रॉम अनऑथराइज एक्सेस. ये 3 मार्क का क्वेश्चन है. अब 3 मार्क का क्वेश्चन को आपको करना है इसके अंदर. हाँ, आपको ये कह रहा है कि एक्सेस राइट आपको डिस्क्राइब द वेज इन विच एक्सेस राइट्स कैन बी यूज टू प्रोटेक्ट द डेटा. एक्सेस राइट, एक्सेस राइट. आप क्या कर सकते हो कि डिफरेंट जो पर्सन है उनको डिफरेंट आप क्या कर दो, यूजर आईडी एंड पासवर्ड असाइन कर दो. ठीक है ना. आपकी जो डेटाबेस है तो आप क्या करो कि आप ये देखो कि इस डेटाबेस में कौन सा टेबल
का एक्सेस किसको मिलना चाहिए? हाँ, एक्सेस राइट की बात हुई, ठीक है ना। तो आप क्या कर सकते हो, एक्सेस राइट दे सकते हो। आप मैनेजर को अपने अलग एक्सेस राइट दिए हुए हैं, डेटा एंट्री ऑपरेटर्स को अलग एक्सेस राइट दिए हुए हैं, ठीक है ना। आपने डिफरेंट लोगों को आपने वो कर दिया, और आपने देखा कि कौन जो है क्या चीज उसकी व्यू कर सकता है। और जिस तरह ये आपके पास है, हाँ, जिस तरह ये मार्केटिंग स्कीम का क्लियरली इन्होंने मेंशन किया है, क्या कह रहे हैं कि एक्सेस राइट गिव मैनेजर हिमसेल्फ एक्सेस टू डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ बाय, अच्छा, डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ डेटाबेस बाय हैविंग डिफरेंट अकाउंट, ठीक है। डिफरेंट लोगों को डिफरेंट अकाउंट दे दिए विच हैव डिफरेंट एक्सेस राइट्स, और हर अकाउंट को डिफरेंट एक्सेस राइट है। किसी के लिए कोई अकाउंट क्या होगा, रीड ओनली होगा, और किसी के लिए वो उसमें एंट्री कर सकता है। जैसे अगर आप एक एग्जांपल ले लो, अगर आप एटीएम मशीन पर जाकर अपने अकाउंट को चेक करते हो, अपना कार्ड एंटर करके, तो आपके पास जो राइट होता है वो क्या होता है, आप अपना बैलेंस चेक कर सकते हो, ठीक है ना। बट दिस डेटाबेस इज रीड ओनली फॉर यू, आप उसमें चेंजेस नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। हाँ, मार्किंग स्कीम दिखाऊं? वन मिनट, कौन सा पेपर है? वन वन। होते हैं क्या मतलब, होते हैं क्या मतलब बेटा, कोई रूल है क्या कि 8 ही क्वेश्चन होंगे? नहीं, कोई ऐसा फॉर्मेट नहीं है। चलो बेटा, क्या कह रहा है, एक्सेस राइट गिव्स मैनेजर हिमसेल्फ एक्सेस टू डिफरेंट एलिमेंट बाय हैविंग डिफरेंट अकाउंट एंड लॉगिन, हैव डिफरेंट एक्सेस राइट्स टू डिफरेंट पीपल, कोई रीड कर सकता है, कोई एक्सेस कर, कोई राइट कर सकता है, हाँ, कोई रीड एंड राइट बोथ कर सकता है, हाँ। स्पेसिफिक व्यूज कैन बी असाइंड टू हिमसेल्फ एंड टू अदर मैनेजर, और वन मैनेजर कैन सी द डेटा फॉर देयर ओन शॉप, ठीक है ना। अब अगर आप एक्सेस राइट नहीं रखेंगे तो हर आदमी हर चीज को देख रहा होगा। यू मे राइट इट डाउन, ठीक है बेटा। हेलो बच्चों, यस दानियाल। यार मैं कितनी मरतबा आपको टोकूं यार। अच्छा, Javier uses data definition language that data manipulation language statements in his database complete the following DML। DML किसके लिए होती है, डेटा को देखने के लिए होती है, डेटा को अपडेट करने के लिए होते हैं, डेटा को डिलीट करने के लिए होती है, ठीक है। अच्छा, कंप्लीट द DML टू रिटर्न द नंबर ऑफ कार्स फॉर सेल इन ईच शॉप। आपको ये बताना है कि हर शॉप में कितनी कार जो है वो फॉर सेल है, हर शॉप के अंदर कितनी कार जो है वो फॉर सेल है। तो अब आपको जाके देखना पड़ेगा कि कौन से टेबल को आप देख सकते हो। अच्छा, कार की जो हमारे पास जो है कि कितनी कार्स हैं, उसको हम कैसे, कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है कार। देखें, शॉप के टेबल में अगर हम देखते हैं तो शॉप के टेबल के अंदर तो कार की बात ही नहीं हो रही है, ठीक है ना। मैनेजर के टेबल के अंदर भी कोई कार की बात नहीं हो रही है। कार के टेबल में रजिस्ट्रेशन नंबर है, मेक है, मॉडल है, नंबर ऑफ माइल्स है, और शॉप आईडी है, ठीक है ना। अगर अब हम लेते हैं शॉप आईडी को, तो जितनी शॉप्स हैं खाली वही आ रही होंगी, तो जरूरी नहीं जितनी शॉप है उतनी आपके पास कार्स हो। नंबर ऑफ माइल्स पे कोई सेंस नहीं बनता है। मॉडल तो एक मॉडल की बहुत सारी कार हो सकती हैं, ठीक है ना। एक मेक की बहुत सारी कार हो सकती हैं, लेकिन एक रजिस्ट्रेशन नंबर की एक कार होगी। तो अगर आप खाली रजिस्ट्रेशन नंबर्स को काउंट कर लें तो आपको पता चलेगा कि कितनी कार्स हैं।
तो रजिस्ट्रेशन नंबर्स कहाँ पर दी हुई हैं? कार के टेबल के अंदर, ठीक है। अच्छा, आपको क्या कह रहा है ये कि आपको शॉप आईडी भी यूज कर रहा है। हाँ, सेलेक्ट काउंट कार रजिस्ट्रेशन नंबर फ्रॉम कार और रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है। तो सेलेक्ट काउंट रजिस्ट्रेशन नंबर फ्रॉम कार्स, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद क्या कह रहा है कि आपको सेलेक्ट क्या करना है? नंबर ऑफ कार्स इन ईच शॉप। तो अब आपके पास ये आप कार के टेबल में आ रहे हैं, तो इस कार के टेबल के अंदर क्या आ रही है भाई? आपको सारी कार्स की डिटेल आ रही है और हर शॉप की डिटेल आ रही है। तो आप क्या करते हैं, इसको ग्रुप बाय शॉप आईडी करते हैं। तो पहले एक शॉप आईडी की सारी कार्स की रजिस्ट्रेशन नंबर को काउंट कर लेगा, फिर दूसरी शॉप आईडी को काउंट कर लेगा, फिर तीसरी शॉप आईडी। तो यहां पर आपको सपोर्ट करेगा ग्रुप बाय। फॉर एग्जाम्पल, यू आर स्टोरिंग डेटाबेस ऑफ द स्टूडेंट्स, राइट। अब आपको ये मालूम करना है कि हर सब्जेक्ट में कितने पास हैं, कितने फेल हैं। हर सब्जेक्ट में कितने पास हैं, कितने फेल हैं। सपोज कि आपने ये डेटाबेस इस तरह बनाई हुई है। फॉर एग्जाम्पल, यू हैव अ डेटाबेस, और इस डेटाबेस के अंदर आप क्या लिख रहे हो? आप लिख रहे हो सब्जेक्ट, रोल नंबर, रिजल्ट। दानियार, कितना नॉन सीरियस एटीट्यूड है आपका। आपको एहसास है कि आपका पेपर है नेक्स्ट नेक्स्ट वीक आपका पेपर है, और आप ये कह रहे हो कि आई डोंट नो। सपोज कि हमने लिखा कौन सा है 101 पास, फिर हमने लिखा कौन सा है 102 पास, फिर हमने लिखा इकॉन 101 पास, फिर हमने लिखा डीएस 103 फेल, डीएस 104 पास, इकॉन 104 पास, और डीएस 101, ठीक है। ये आपके पास डेटाबेस, यस, ठीक है। अब आपसे क्या कह रहा है कि आपको ये बताना है कि हर सब्जेक्ट में कितने स्टूडेंट पास हुए। आपको बताना है हर सब्जेक्ट में कितने स्टूडेंट हैं, हर सब्जेक्ट। रोल नंबर काउंट कर लें, तो रोल नंबर तो बहुत सारे आ रहे हैं यहाँ पे, 101, 102, 101, 103, 104, 104, 101। तो ये तो बहुत सारे रोल नंबर आ गया। 1 2 3 4 5 6 7 आ गए। आप क्या करेंगे? आप यहाँ पे जो कमांड लिखोगे, वो कमांड ये होगी, सेलेक्ट काउंट। अब अगर मैं रोल नंबर काउंट करता हूँ, तो रोल नंबर से ये थोड़ी पता चल रहा है कि एक ग्रुप में कितने एक सब्जेक्ट में कितने स्टूडेंट, सबको काउंट कर लेगा। अगर मैं लिखता हूँ रोल नंबर फ्रॉम
स्टूडेंट, यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा ग्रुप बाय सब्जेक्ट। अब क्या करेगा, एक सब्जेक्ट के अंदर कॉमसाई, कॉमसाई के अंदर वो देखेगा कितने स्टूडेंट हैं, 2 हैं। फिर वो इकॉन के अंदर देखेगा, इकॉन के अंदर 2 मिलेंगे उसको, ठीक है ना। फिर बीएस के अंदर देखेगा, बीएस में 3, ठीक है। द सेम वे यू आर आस्क्ड टू शो कंप्लीट द डीएमएल स्टूडेंट टू रिटर्न द नंबर ऑफ कार्स। नंबर ऑफ कार्स को किस तरह हम देख रहे हैं, हम देख रहे हैं किसके थ्रू, कार रजिस्ट्रेशन नंबर के थ्रू। और इसको अपने ग्रुप बाय, अभी हमें क्या देखना है, हर शॉप के अंदर कितने हैं, तो ग्रुप बाय हमने क्या कर दिया, शॉप आई। यस बेटा, ये देखें, कंप्लीट द डीएमएल स्टेटमेंट टू इंक्लूड द फॉलोइंग कार्स कार इन द टेबल कार। आपको टेबल के अंदर फील्ड ऐड करनी है, तो ऐड करने के लिए क्या करेंगे आप, नहीं टी नहीं, क्या कर रहे हो, डीएमएल है ना, डीएमएल ऑल्टर ऑल्टर कैसे हो सकता है, आपको डेटा ऐड करना है, कंप्लीट द इंक्लूड द फॉलोइंग का। यस बेटा, इज द हाउ टू एंटर डेटा इन अ टेबल, You insert the value. insert into, insert into, किसमें इंसर्ट करना है हमें, कार के टेबल में। क्या इंसर्ट करना है, ये वैल्यूज दी हुई। अच्छा, सम टाइम ये हो सकता है, अब देखो कितनी फील्ड्स हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 डेटा आइटम्स है। अगर डेटा आइटम लेसर होते हो तो फिर आपको ये भी मेंशन करना पड़ता कि आप कौन कौन सी फील्ड्स के अंदर डेटा एंटर कर रहे हो, तो फील्ड के नाम भी देने पड़ते, ठीक है ना। यहाँ पर तो अच्छा, अब आपको यहाँ पे जो भी डेटा आइटम है वो सीक्वेंस के अंदर होंगे, ठीक है। पहला डेटा आइटम इधर आएगा, दूसरा इधर आएगा, तीसरा इधर, चौथा इधर, और ऑल वैल्यूज, क्या ऑल वैल्यूज, वैल्यूज। ग्रुप बाय के ऊपर मैंने लिखा है फ्रॉम कार्स, ठीक है बेटा। अच्छा, अब आपसे क्या कह रहा है कि ये एक प्रोग्राम है, इसके अंदर आपको एरर आइडेंटिफाई करना है। डू यू रिमेम्बर व्हाट वी हैव स्टडीड, हमने कहा था कि वी स्टोर डेटा इन पीसी, पीसी स्टोर्स एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, पीसी पीसी कॉपीज दिस एड्रेस, नंबर 1 पीसी क्या करता है, इस एड्रेस को कॉपी करता है एमएआर में। फिर क्या होता है, पीसी इज इंक्रीमेंटेड बाय 1, पीसी +1 होना चाहिए था। फिर ये एड्रेस लोड होता है एड्रेस बस में, वहां से डेटा आता है एमडीआर में, एमडीआर से कहा जाता है ये सीआईआर में या फिर एसीसी में, ठीक है भाई। अब देखो क्या कह रहा है ये, पहला वाला क्या कह रहा है कि पीसी कॉपीज इट्स कंटेंट टू एमएआर, ये तो करेक्ट है। फिर कह रहा है पीसी इज डेक्रीमेंटेड बाय 1, ये क्या होना चाहिए, +1। तीसरा क्या कह रहा है कि एमएआर का कंटेंट एमडीआर में नहीं आता, नहीं, एमएआर के एड्रेस का कंटेंट एमडीआर में आता है, तो ये डबल ब्रैकेट में आता है। द कंटेंट फ्रॉम एड्रेस ऑफ एमएआर इज कॉपीड इनटू एमडीआर, द कंटेंट फ्रॉम एड्रेस ऑफ एमएआर इज कॉपीड टू एमडीआर, ठीक है। और तीसरा क्या है अभी, 2 एरर है क्या, अच्छा एमडीआर से डेटा सीआईआर में चला तो ये सही। अच्छा, फिर उसके बाद ये आगे क्वेश्चन। अच्छा, अब ये क्या कह रहा है कि आपको और 101 के साथ और करना है इस वैल्यू को, ठीक है। तो जब आप इसको और कर देंगे तो क्या आएगा, अब यहाँ पर देखें आपके पास जो ऑपरेंड यहाँ पे दिए हुए हैं, सारे के सारे ऑपरेंड आपको डिनरी में दिए हैं, ठीक है ना।
तो आपको क्या करना है, इसको और करना है 101 के साथ। 101 में जाके देखो क्या लिखा हुआ है। 101 में लिखा हुआ है 11 11 00 00। तो अगर आपको ये 11 यहाँ कर देता हूँ, 11111111 को और करना है इसके साथ। और क्या कहता है, इफ इधर इज वन आउटपुट इज वन, तो आपका आउटपुट क्या हो जाएगा, 11111111। अब ये कह रहा है कि जोर करना है इसके साथ, 15 के साथ। तो क्या होगा, हाँ, 00000000। इसको जोर करना है 15 के साथ, तो 15 को बाइनरी में हम किस तरह लिखते हैं, अब जोर करना है। जोर क्या करता है बेटा, अगर आपका डेटा सेम हो तो 0, डिफरेंट है तो 1। तो ये डिफरेंट है, 11110000। हो गया। फिर क्या कह रहा है अभी, LSR#2 लॉजिकल शिफ्ट राइट 2 प्लेसेस। आप जाके देख लो यहाँ पे क्या कह रहा है LSR, क्या कह रहा है, बिट्स इन ACC आर शिफ्टेड लॉजिकली प्लेस इन n places to the right, zeros are introduced on the left side। अच्छा, अब आपको क्या कह रहा है, ये जो नंबर है हमारे पास 1010101010, ठीक है, इसको क्या करना है, लॉजिकली शिफ्ट राइट करना है। जब लॉजिकली शिफ्ट राइट करना है तो ये राइट साइड पे इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, क्या बचेगा, 010101। ये 1 इधर आ गया, और यहां पे क्या कह रहा है वो 0 ऐड कर। तो क्या आंसर आ गया, 00101010। फिर ये कह रहा है कि इसको एंड करना है, किसको एंड करना है, 01010101 को एंड करना है 104 से। 104 में क्या लिखा है बेटा, सारे 0 लिखे हैं, तो 0 के साथ एंड कर दें, तो सब क्या हो जाएंगे, एंड क्या करता है, बोथ आर 1 देन आउटपुट इज 1, अदरवाइज आउटपुट इज 0। क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा सा चेंज किया है। हाँ सही है। यस बेटा, देखें क्या कह रहे हैं। क्या कह रहा है भाई, बॉबी इज रिकॉर्डिंग अ साउंड फाइल फॉर हिज स्कूल प्रोजेक्ट। ही रिपीट्स द रिकॉर्डिंग ऑफ द साउंड सेवरल टाइम with a different sample rate each time. Describe the reason why sound is closer to the original when a higher sampling rate is used. जब क्योंकि जब वो करीब करीब होगा तो उस बीच में क्या अगर आपका higher sampling rate is used, it means more samples can be taken per second. When we are taking more samples per second, तो there will not be quantization error. इसमें कोई क्वांटाइजेशन एरर कम से कम हो जाएगा, और साउंड विल बी नियरर टू ओरिजिनल, एक्यूरेसी बढ़ जाएगी, ठीक है। अच्छा भाई, इसको देखो क्या कह रहा है, स्मॉलर टाइम गैप बिटवीन द सैंपल्स मेक डिजिटल साउंड वेव मोर एक्यूरेट, स्मॉलर क्वांटाइजेशन एरर, ठीक है। क्या हो जाएगा बेटा, हाँ, मोर द सैम्पलिंग रेट, smaller the quantization error, ठीक है, smaller the quantization error resulting better quality, ठीक है भाई, as more details can be stored।
ठीक है, आपकी डिटेल बढ़ जाएगी. डिस्क्राइब द रीजन व्हाई द साउंड फाइल इंक्रीजेज व्हेन अ सैंपलिंग रेट बढ़ेंगे तो मतलब बिट्स यूज होंगे. हाँ, जब if we increase the sampling rate means more samples will be stored and each sample stored on bits. on bits, so file size will be increased. Yeah, increasing sampling rate Increases the number of means more samples will be stored. Each sample requires number of bits. So more samples, higher, larger, क्या कह रहा है? Higher the larger the file size. इसका मतलब ये हुआ कि if you want to compress your file, audio file, you need to reduce sampling rate. अच्छा भाई, Bobby wants to email the sound file to his school email address. He compresses file before sending the email. Explain the reason why Bobby compresses the sound file. कंप्रेशन करने के एडवांटेज क्या होते हैं भाई? कंप्रेशन करने के एडवांटेज क्या होते हैं कि फाइल बहुत बड़ी है तो उस तरह से कंप्रेस करेगा और उससे जल्दी भी ट्रांसफर. हाँ, कंप्रेस करने के 3 एडवांटेज होते हैं. It will occupy lesser space on disk. It will be transmitted quickly. It will consume lesser amount of data. Yeah. तो क्या होगा? Compressed file occupy lesser space, lesser disk space and memory space. Transmitted quickly in lesser internet data. अच्छा अच्छा भी क्या कह रहा है? बॉबी यूजेस लॉसलेस फाइल कंप्रेशन. डिस्क्राइब हाउ लॉसलेस फाइल कंप्रेशन कंप्रेस द साउंड फाइल. लॉसलेस फाइल कंप्रेशन का हम क्या यूज करते हैं? रन लेंथ एन्कोडिंग. हम देखते हैं कि साउंड पैटर्न विच आर ऑकर रिपीटेडली, दीज पैटर्न्स आर रिकॉर्डेड वंस विथ नंबर ऑफ रन्स. ठीक है ना? तो क्या होता है बेटा? रन लेंथ एन्कोडिंग इज यूज ठीक है. हाँ, क्या करते हैं? रन लेंथ एन्कोडिंग किस तरह होती है? अच्छा, ये क्या करते हैं? रिपीटेड साउंड पैटर्न्स आर नहीं, run of repeated sound patterns are recorded and stored once with number of repetitions. On decompress all data is recovered is recovered. चलो, ये क्या बोल रहे हैं भाई? reduces amplitude to only by the range used. Limited amplitude means fewer bits per sample. Run length encoding क्या लिखा? When where consecutive sound are the same, record the binary value of the sound and the number of times it repeats. Record changes instead of actual. ठीक है भाई?
ये हो गया 1 hour 30 minutes 30। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन मेरा बच्चा, ये आराम से बोलने वाली वाली बात है ना, ये मुझे बहुत डराती है। हाँ मुझे बहुत है ना। हाँ हाँ, जब तुम टेंशन नहीं लेते हो ना तो मैं बहुत डरने लगता हूँ। जब राहिम ने बोला ना कोई टेंशन नहीं है, तो इसको अंदर क्या मेरा घबराने का टाइम शुरू हो गया। हाँ बेटा, अब क्या कह रहा है? आ स्कूल इज सेटिंग अप नेटवर्क विद इन वन ऑफ इट्स बिल्डिंग स्टेट वेदर द नेटवर्क विल बी लैन और वैन। इनसाइड द बिल्डिंग क्या होगा? लैन होगा। और जस्टिफाई करें आपकी चॉइस। अब बताए ना आपको क्या होगा कि विद इन अ बिल्डिंग है तो फिर आपको क्या यूज करना है? लैन यूज करना है। अब लैन की रीजन क्या है? वैन नहीं चाहिए, वैन के लिए आपको इंटरनेट चाहिए होगा, राइट? तो इसके अंदर आपको वैन की नीड नहीं है। अच्छा जी, तो छोटे एरिया के अंदर आपको उसकी नीड नहीं है। क्या बोल रहे हैं अभी? लैंड यूज करेंगे, स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया है, नो लीजिंग एक्सटर्नल इंफ्रास्ट्रक्चर, आपको इंटरनेट और को आपकी नीड नहीं होगी ना, तो आपको ये एडवांटेज हो जाएगा। तो अच्छा, तो क्या चाहिए होगा अभी? लैंड विल बी suitable for network inside the building, ठीक है? नो नीड ऑफ WAN इंफ्रास्ट्रक्चर और इंटरनेट, ठीक है? नो नीड ऑफ ISP, lesser expensive। अच्छा, one classroom in the building has 30 computers. The computer need to be connected to the network. Each computer has a network interface card. Identify two possible devices that can be used to physically connect the hub or switch. मॉडेम की नीड नहीं है क्योंकि ये लोकल एरिया नेटवर्क चल रहा है। One classroom in the building has 30 computers. The computers need to be connected to the network. Each computer has a local area network card. तो आपके पास हब या स्विच ले लो और राउटर ले लो। हाँ बेटा, हब ले लो, स्विच ले लो अलग, हाँ, या फिर आप एक ले लो, फिर आप वो ले लो राउटर। नहीं, राउटर का फिजिकली राउटर का काम तो वो है आपका डेटा को राउटिंग करना है कि आपको इस आईपी एड्रेस पर आईपी एड्रेस की तरफ राउटिंग करना है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन है। द स्कूल हैज सेवरल लैपटॉप, ईच लैपटॉप हैज अ वायरलेस नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। डिस्क्राइब द फंक्शंस ऑफ वायरलेस नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। 4 मार्क के लिए। तो वायरलेस होता क्या है कि जब आपके पास वाईफाई है ना, वाईफाई यूज कर रहे हैं तो आपके पास रेडियो सिग्नल होंगे एंड कंप्यूटर वर्क्स ऑन डिजिटल सिग्नल्स। तो ये जब आप कोई डेटा आप सेंड करोगे तो आपका नेटवर्क इंटरफेस कार्ड आपके डिजिटल डेटा को किसमें कन्वर्ट कर देगा? रेडियो वेव्स में, और ट्रांसमिट कर देगा। और रिसीविंग रेडियो वेव्स को कन्वर्ट करेगा डिजिटल डेटा में और उसको रिसीव करेगा, ठीक है, एंटर करेगा। फिर उसके बाद नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के अंदर ही आप क्या करते हो? मैक एड्रेसेस होता है, तो ये आइडेंटिफाई करोगे कि ये जो मैसेज है ये आपके लिए है या किसी और के लिए, ठीक है ना? तो आपको मेक श्योर करेगा कि मैसेज का किस डिवाइस के लिए, डिवाइस की आइडेंटिफिकेशन भी किसके थ्रू होगी? आपके नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के थ्रू होगी।
ठीक है ना। तो अब क्या हो रहा है अभी कि अब आप किस तरह लिखोगे, क्या काम करेगा। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, वायरलेस नेटवर्क इंटरफेस क्या करेगा अभी, will provide, will connect computers with local area network, ठीक है। अच्छा, दूसरा काम क्या करेगा, इट कन्वर्ट्स डिजिटल सिग्नल्स इनटू रेडियो वेव टू ट्रांसमिट ओवर नेटवर्क, ठीक है। इट कन्वर्ट्स रिसीविंग रेडियो वेव्स into digital. It is used to identify the device over network as it has a unique MAC address. ठीक है बच्चों, ठीक है।